Hello everyone, welcome to the new video. Well, in this video, I'm going to tell you, is it necessary to prepare for all the topics for IBPS SO prelims? Or you can say any exam generally. See, you have English, you have reasoning, you have maths. You're preparing for IBPS SO prelims 6 months down the line. From beginner's point of view, now you're slowly started your chapters, whether it's coding, decoding, English ka grammar or whatever it is. But somewhere down the line you have heard, or it is right, or statistics say that no one attempts all the questions, either in prelims or in mains. So questions are skipped, sir, due to time, or due to I don't know the particular question. So shall I prepare or not? Because sir, अगर हम उनमें इतना time दे, and if I waste my time and if I don't attempt the question, then what is the point? So in college times, we used to skip all these things. सब पढ़ने को बोर लगता था. I know very well. थियोरेटिकल आंसर है ना यार, 2 लाइन का 20 लाइन कैसे करना है वो हम भी जानते हैं. सो शाला अप्लाई द सेम थिंग ओवर हियर. कुछ स्टूडेंट्स का एक डाउट है, डाउट वैलिड भी है. सो आई विल ट्राई टू थ्रो लाइट ऑन दिस and understand the facts. Okay, English, reasoning, maths. Basic plan, you study the concept, solve, easy to moderate, moderate to difficult. Then some of you do very good thing, go to the exact paper, solve that exact level. Okay, for example, you studied month puzzle. So how the month puzzle has been asked in various exams, especially recent exams. Then you see where you stand as compared to the month puzzle. Are you able to solve it with respect to time or not? Everything is there. But then you see you have attempted all the reasoning, you have done all the reasoning. But when it comes to the paper, 50 marks, when you attempt as per 40 minutes, you reach around 35, 38, 40. Sometimes paper is good till 42. It means you do not touch 50, which is quite valid, because टाइमिंग कम है तो कुछ ना कुछ तो वजह होगी. और कोई भी टाइमिंग अच्छा नहीं होता कि पूरे 50 तक आप पहुँचो. ओके, इन वेरी रेयर ओकेजन्स. सो शैल आई स्टडी और नॉट? सी, लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स. देर आर सर्टन टॉपिक्स इन एवरी सेक्शन विच यू मस्ट डू. ओके, फॉर एग्जाम्पल, यू कैन नॉट से सर आई विल नॉट डू पजल्स, बहुत टाइम लगता है, बोर होता है, बाद में करूँगा. इफ़ यू डू नॉट डू पजल्स, 20 से 25 मार्क, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पेपर इज आउट. एंड इवन इफ यू स्कोर रेस्ट 25 मार्क्स, इट्स टू मच प्रेशर ऑन मैथ्स एंड इंग्लिश. Talking about the math section, you cannot say every time I will do less DI. In fact, I would say out of 5, at least 3 you should do. Or in simple language, 25 questions DI. Somehow you have to get around 14, 15 if the paper is of that level. If easy, then you should go 18, 19. Okay, because if one DI becomes tough, then the entire 5 mark set is out. From the remaining 4 DI, that is 20 marks, you have to get 15. So try to understand the game. Then comes to English. English में, yes, you can say some students tell me, sir, sentence corrector आता है लेकिन बहुत टाइम लगता है, और 5 आने की गारंटी तो बिल्कुल नहीं, सर 2-3 भी आने की गारंटी नहीं है. सो ऐसा कुछ केस है तो आई कैन अंडरस्टैंड. बट यू कैन नॉट से सर फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं आता. फिल इन द ब्लैंक्स इज सच अ चैप्टर, डबल फिलर, सिंगल फिलर्स. इफ यू मेक श्योर योर ग्रामर इज करेक्ट, यू कैन सॉल्व. नाउ आई विल टेल यू इन शॉर्ट, इन ब्रीफ, दैट हाउ टू थिंक. और कैसे पढ़े ही नहीं क्या. सी, you should study all. ठीक है, when it comes to study part, you should study all. When you complete the syllabus, you will get an idea. Okay, so I can solve quadratic equations, I can solve simplification, approximation. DI में सर ने बोला 25 में से 15 चाहिए, लेकिन मेरा 12-13 है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे और इम्प्रूव करना है. ओके, मीन्स यू आर गेटिंग योर ओन स्टैटिस्टिक्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, if I talk about miscellaneous, there comes a big problem in maths. सर 20 मिसलेनियस, ऑलमोस्ट 16-17 चैप्टर्स. सर दिमाग का दही होता है. एक बात बोलूँ, यू आर राइट, दिमाग का दही होता है. आई विल टेल यू सिलेक्टिव टॉपिक्स. एवरेज, रेशियो, परसेंटेज,
या टॉप प्रायोरिटी पे करो, मिसलेनियस फॉर दैट 1 मार्क क्वेश्चन। वाई? बिकॉज इन तीनों का यूटिलाइजेशन आपको DI में पड़ता है। एवरेज निकालने को परसेंटेज तो होती ही है, इसका 35%, इसका 28.9%, तो ये 3 चैप्टर करो। इसके अलावा आई वुड से प्रोबेबिलिटी करो, ठीक है। आई नो प्रोबेबिलिटी में थोड़े हायर लेवल आते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी करो। प्रोबेबिलिटी ऐसा नहीं है कि बिना देख के आप उसको स्किप करोगे, ओके। एंड बाकी के चैप्टर्स की जो वैल्यू है, अभी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइप्स ऑफ डिस्टेंस, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस वगैरह वगैरह। आप ये सब पढ़ भी लो तो कहीं ना कहीं आप 50 तक नहीं पहुंचते हो। तो यहाँ पे प्लान होता है व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी, विच चैप्टर, विच सम will be solved in less time. And this is what I tell you, preparation strategy. I know you can solve, but which sum will be solved faster? If I give you time, speed, distance का 1 mark का question, if I give you boards and streams का 1 mark का question, by judging both you should know which one to pick. If you see first boards and stream, after reading it you should able to get it. Is it cover under my ability, not under my syllabus? Is it cover under ability that I can grasp that particular thing in 1 minute or so quickly by shortcut methods, by analyzing 2-3 steps in mind? This is what you need to do. And जो भी आपके पहले प्रायोरिटी में वो आपको पहले वाइंड अप करने हैं। एक बात बोलूँ, आई विल गिव इन माई एग्जाम्पल सिंपली वे। सी इफ आई टॉक टू यू like I am going to the exam, so my plan would be generally that looking at the experience and the kind of question, I will not attempt compound interest, and most probably at when the exam will end मैंने वो attempt नहीं किया रहेगा because my focus will be get to max in DI, get that quality equation stuff, simply approx जो भी आए, if number series is there, game ख़त्म करो यहीं पे, and those एवरेज परसेंटेज DI, बस। कहना गलत नहीं होगा, मेरे 30s के करीब ही रहेंगे मार्क्स अराउंड, बट आई एम मोर हैप्पी। वाई? माई गेम इज इन रीजनिंग। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता होगा, क्योंकि मुझे पता है कुछ चीज़ों का टाइम लगेगा। सी वरना मैंने कहा भी है, मैं अपफ्रंटली बोल दूंगा गेट 50 out of 50 सारा सिलेबस पढ़ाना, नहीं। कॉमन सेंस होता है कि टाइम 40 रखा है, कुछ तो मतलब होगा IBPS का कि वो नहीं चाहते आप 50 तक पहुँचो। तो कहाँ तक चाहते हैं वो चाहते हैं आप डिसीजन अच्छे लो। कल ऑफिसर बनोगे ना, कौन से बेसिस पे? जब आप फैसले अच्छे लेना सीखोगे तब। ये जो आप मिस्टेक्स करते हो या सिलेक्ट नहीं होते ना कहीं थोड़े बहुत फिसले 19-20 होते हैं। हर बार काबिलियत पे शक नहीं होता, लेकिन आपको इनसे सीखना है, जो लोग प्रीवियस एक्सपीरियंस दे चुके हैं। कभी कभी आते हैं यार वो मैं यार टाइम स्पीड वाले चैप्टर पे वो सम पे यार ज़्यादा दिमाग ख़राब कर लिया, बाद में देखा यार वो टाइम वर्क वाला इजी था, यानी कि डिसीजन कहीं ना कहीं आपका रॉन्ग हुआ। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, सेकंड्स के बाद, यू शुड गेट अ कॉल फ्रॉम द हार्ट के बॉस नहीं, आई शुड मूव ऑन, गेट द अदर सम्स डन। सो अंडरस्टैंड, समटाइम्स यू नीड अ प्लान बी, यू शुड स्टडी ऑल, मैंने कहा है यू शुड अंडरस्टैंड दिस। और मैंने जो चैप्टर्स बताए, सेंटेंस कनेक्टर कहो या इंग्लिश में जो न्यू पैटर्न आते हैं, समटाइम्स इट डिफ़िकल्ट टू एनालाइज, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस पिकअप करना सीखो। देखो माय वीडियो का पर्पस इज़, यू ऑलरेडी नो, आई नेवर से गेट ऑल दी मार्क्स, ठीक है, बिकॉज लेवल थोड़ा बढ़ गया है, आई कैन अंडरस्टैंड, हर एक का लेवल डिफरेंट होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कैसे भी तरक्की और नया कैसे पार करनी है। यू हैव टू क्रॉस दैट पर्टिकुलर लाइन, माई प्लान इज़ फर्स्ट दैट, and after that whatever your strength is, reasoning, maths, English, preferably reasoning, get the max out of it, ताकि you will be safe। एक अपफ्रंटली बोलूँ, कुछ स्टूडेंट्स होंगे आज की तारीख में, कहेंगे नहीं, आपके दोस्त भी होंगे या आप खुद होंगे कि सर आई विल डू IBPS SO प्रीलिम्स, वो हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? और वो करते भी है क्योंकि उन्होंने गेम को एनालाइज किया है, उनको भी पता है वो नहीं करने वाले वो 150 क्वेश्चंस, उनको ये भी पता है उनको 90-100 मार्क्स नहीं आने वाले हैं, वो करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, दैट्स इट, एंड दे विल स्किप द क्वेश्चंस, बट दे विल स्टडी। यू हैव टू स्टडी ऑल एंड यू हैव टू मेक अ कैटेगरी, ओके।
इफ़ यू वांट आई शुड टेल यू ऑन दिस स्पेसिफिक चैप्टर वाइज, वैसे तो मैंने बता दिया है, तो इस पर कुछ गाइडेंस चाहिए तो टेल मी, तो इस पर ज़रा मैं वर्क अपॉन करता हूँ और अगले वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश करूँगा. बट द गेम प्लान विच आई वांट टू टेल यू इज़ स्टडी ऑल. और पता है एक मोमेंट के बाद ना मुझे पता है दिमाग पे प्रेशर गिरता है, आई नो वेरी वेल, स्पेशली इन मैथ्स आई वुड से. ठीक है, बिकॉज हर एक चैप्टर को सर कैसे समझो कि अटेम्प्ट तो नहीं करने वाला है, तो साइकोलॉजिकल फैक्टर को यार वैसे भी नहीं करने वाला, इसको छोड़ दूँ क्या. लेकिन आपको समझना ये भी है क्या इसकी इंपॉर्टेंस DI में है या नहीं. ऐसा नहीं कि मेरी बात अलग है, मैं वो रिस्क ले रहा हूँ तो मुझे पता है मुझे बाद में दूसरे क्वेश्चन कवर करने पड़ेंगे और ये मेरा कॉन्फिडेंस है. यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, डू यू हैव दैट कॉन्फिडेंस इफ योर सिलेबस इज डन. इफ यस, गो अहेड, यू विल डू इट. मैं इनसे फोकस ज़्यादा करूँ, बट जिनको प्रीलिम में डाउट है मैं कहूँगा प्रीलिम पे पहले फोकस करो. देखो कंपटीशन इज गोना बी रियली स्टिफ, लेट मी टेल यू. यू हैव टू वर्क स्मार्ट. वर्क हार्ड तो वैसे भी चल रहा है, वर्क स्मार्ट, बिकॉज वर्किंग हार्ड विल गिव यू एन आइडिया, ओके आई कैन डू दिस. वर्किंग स्मार्ट, विच वन टू डू फर्स्ट, ये फ़र्क समझो. डेफिनेटली यू विल मेक योर वे and prepare well. Tell me if you need direction on this particular thing, and I'll make sure I'll cover it in coming videos. जो भी रहेगा, पहले मेरे कुछ plans है तो उसके हिसाब से मैं चलूँगा. ठीक है, but I will note it down and I will bring in another video. Okay, keep studying, keep practicing, and most important thing, कोई भी नहीं गया, keep believing in yourself. Thanks for watching. Thank you.